Good morning, my dear students. How are you? I hope that you all are doing great. So, students, here is our next chapter, and that is section 1 of Unit 2, which is Michelangelo. Michelangelo, a portrait. Okay, so this is a short biographical sketch of a sculptor and painter whose work still arouse awe and wonder in the hearts of people. It is saying that what this chapter is all about. So this chapter is all about a person, a portrait whose name was Michelangelo, and how he started his sculpturing and how he how he did the learning of using of hammer, chisel, and the painting, and it goes till his death. So this complete lesson covers his life sketch. Okay, so let's start. Many brilliant artists lived and worked in Italy during the 15th and 16th centuries. Among them were Leonardo da Vinci, Raphael, and Titian. But perhaps the greatest of them all was Michelangelo Buonarroti. Michelangelo Buonarroti. It means that so many आर्टिस्ट वर देयर इन 15th एंड 16th सेंचुरी. बहुत सारे आर्टिस्ट थे 15th-16th सेंचुरी में, जिसमें से बहुत ज़्यादा फेमस थे लियोनार्डो दा विंसी, राफेल, टाइटेनियन. लेकिन जो उनमें से सबसे ज़्यादा फेमस थे, ग्रेटेस्ट थे, ही वॉज माइकलैंजेलो बुनराटी. सो माइकलैंजेलो वॉज बॉर्न ऑन 6th March 1475. When? 6th March 1475. His father, Lodovico, worked as a magistrate in the small Italian town of Caprese. So he was working as a magistrate. Where? In Caprese. Okay. So this Caprese is in Italy, is in Italian town, and right now this Caprese is known as Caprese Michelangelo. Means its name has been changed. Moving further, Michelangelo's mother's Francesca. Remember the name of Michelangelo's mother, Francesca, died when he was only 6. So her mother left him when he was just 6 years old. Though Buonarrotis were an old and distinguished family, they had fallen on hard times by the middle of the 15th century. Means कि they were rich, okay, and they were well-known family, but मिडल ऑफ 15th सेंचुरी में क्या हुआ कि दे हैड फॉलन ऑन हार्ड टाइम्स. मीन्स कि थोड़ा उनकी लाइफ में थोड़ी मुश्किल भरी सिचुएशन आ गई थी, डिफ़िकल्ट सिचुएशन आ गई थी टू लिव देयर लाइफ. ठीक है. अगेन व्हाट हैपेंड, माइकलैंजेलो वाज सेंट टू द फैमिली फार्म एट नियर बाय सेटिग्नानो टू बी ब्रॉट बाय अ नर्स. जब ऐसी सिचुएशन आई कि दैट दे वर लाइक इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू लिव देयर लाइफ एंड सस्टेन प्रॉपरली. So therefore his father decided to send this Michelangelo to a family farm, Settignano. Okay, and here a nurse brought him up. A nurse brought him up means एक nurse ने उन्हें पाल पोस के बड़ा किया. Now moving further, this area, which area? This Settignano was well known for its stone quarries, and his nurse and her family were stone cutters. Actually देखो जिस प्लेस पे ये गए, वो प्लेस जो सेटिग्नानो था, इस प्लेस पे ये प्लेस फेमस था स्टोन क्वारीज के लिए, यानी जहाँ पे स्टोन्स का वर्क होता है. ठीक है, स्टोन्स का वर्क जहाँ पे होता है ये उस चीज़ के लिए फेमस था. मोर ओवर इसके साथ साथ जिस नर्स के यहाँ दे लाइक ही यूज टू स्टे और ही वॉज ब्रॉट अप, सो दोज नर्स एंड हर फैमिली मेम्बर्स वर स्टोन कटर्स. जो स्टोन को कट करके पीसेज में मोल्ड करते हैं, ये उनके फैमिली का वर्क था जहाँ पे ये रहते थे. ठीक है. Moreover, it is likely that Michelangelo learned to use hammer and chisel long before he learned to read and write. Means कि we learn alphabets A, B, C, D and reading and writing starting from 4 years, then 5 years, then 6 years. But rather than learning these alphabets, he first learned
hammer and chisel. It means how to use hammer and chisel. Hammer means hathodi and chisel means that cheni. Okay, so at the age of 10, Michelangelo returned to Florence to live with his father. To live with his father. Yeah, to live with his father. So students, when he returned to Florence at the age of 10, it was here that the difficult and uphill task of learning to be a sculptor and painter started for Michelangelo. Actually, when he returned to Florence, then he started his journey of learning these skills. Learning these skills of sculptor. Sculptor. Okay, means the one who does the work of sculpturing. जो स्कल्पचर का काम करता है, जो पेंटिंग का काम करता है, उसे हम स्कल्पटर कहते हैं. ठीक है. Started for Michelangelo. ये Michelangelo के start हो गया. He enjoyed the company of the young apprentices from the artist workshop in the city. So he went for the internship for the apprentice, and he enjoyed doing this internship, this apprentice, along with his friends, and he learned a lot of things were there. Again, he would sit and draw with them. Michelangelo's father was very unhappy with his son. Why was he very unhappy? The reason was rather than studying, reading and writing, he was interested in this painting kind of work. Okay, he thought that an artist's career was beneath the dignity of member of his family, as painters and sculpture was looked down on at that time. मीन्स उस टाइम पे जैसे पेंटर्स और स्कल्पटर्स को देखा जाता था, ये बहुत ज़्यादा उसकी फैमिली के हिसाब से डाउन टू अर्थ वर्क था. यानी कि जिस फैमिली से ये बिलोंग करते थे, उस फैमिली के हिसाब से ये वर्क बहुत ज़्यादा लो लेवल का वर्क था. सो बच्चों, यहाँ पे वी गेट अ लेसन कि वी शुड नॉट लुक फॉरवर्ड कि इट इज़ वेदर अप टू द लेवल ऑफ आवर फैमिली और नॉट. इफ़ वी आर पैशनेट ऑफ समथिंग, फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ यू आर स्टडिंग, but if you have a passion of music, if you have a passion of dancing, if you have a passion of playing cricket or playing any sports, you should pursue it rather than what your family standards are. ठीक है. And I urge the parents as well that they should allow their children to let them follow their passions. Moreover, आगे बढ़ते हैं. Despite many fierce arguments and beatings, Michelangelo's passion and interest for art remained undiminished. Means कि he was got beaten and scolded by his parent, by his father. Who? Michelangelo को मतलब उसके फादर ने बहुत ज़्यादा डांटा पीटा कि ये सब मत करो, ये सब छोड़ दो. बट इसके बावजूद भी, in spite of all this, Michelangelo का जो पैशन था इस वर्क के लिए, वो दैट नेवर फॉल डाउन, वो कभी भी कम नहीं हुआ. अनडिमिनिस्ड रहा. अनडिमिनिस्ड का मतलब होता है कभी भी कम नहीं होना. ठीक है. नेवर डिक्रीज, नेवर डिक्रीजिंग. ठीक है. अब नेक्स्ट देखो. देन व्हाट हैपेंड कि व्हेन ही वाज 13, ध्यान देना, 10 में वो अपने फादर के पास आया, 10 ईयर्स का जब था तो. और 10 ईयर्स के बाद जब वो 13 ईयर्स का पहुंचा, तो क्या हुआ उसके साथ? व्हेन ही वाज 13, ही apprenticed to Domenico Ghirlandaio, a leading Florentine painter who taught him to paint frescoes. ठीक है. पहले ये समझो कि ये ट्रेनिंग कहाँ से लेता है. ये ट्रेनिंग लिया बेसिकली डोमिनिको घिरलैंडियो से, जो कि एक फेमस फ्लोरेंटाइन पेंटर था. फ्लोरेंटाइन पेंटर मीन्स फ्लोरेंस एक प्लेस है जहाँ का ये पेंटर था, बहुत फेमस पेंटर था. ये उसके यहाँ से सारी की सारी ट्रेनिंग लिया, अपनी अप्रेंटिस अपने वहाँ से कंप्लीट किया. देन फ्रेस्कोज. अच्छा, बात यह थी कि किस चीज़ में ट्रेनिंग लिया था? ट्रेनिंग लिया था फ्रेस्कोज में. ठीक है. तो फ्रेस्कोज आर पिक्चर्स पेंटेड इन वाटर कलर ऑन अ वॉल. ठीक है. और अ सीलिंग यानी कि ये जो पेंटिंग्स हैं, ये पिक्चर्स और पेंटिंग्स हैं जो कि की जाती हैं सीलिंग पे या फिर वॉल्स पे, बिफोर द प्लास्टर बिकम्स ड्राई. जब प्लास्टर ड्राई नहीं होता. देखो होता क्या है एग्जैक्टली कि व्हेन यू कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग, सो आफ्टर ब्रिकिंग, जब ब्रिकिंग वर्क कंप्लीट होता है, जब ईटा लगाने वाला काम फिनिश होता है, उसके बाद वर्क होता है सीमेंटिंग का. ठीक है. उस पर सीमेंटिंग का होता है काम. तो उस सीमेंटिंग के वर्क के पहले एक छोटी सी पेंटिंग की जाती है टू आर्टिकुलेट इट,
यानी उस वॉल को या उस सीलिंग को थोड़ा ब्यूटीफुल बनाने के लिए वो पेंटिंग की जाती है, ठीक है। सो ये उसी की बात कर रहा है कि जब तक प्लास्टर ड्राई नहीं होता तो उसके पहले ये पेंटिंग की जाती थी, और इसी का इसने ये स्किल सीखा था। कहाँ से, किससे सीखा था? अपने मेंटर से। मेंटर का नाम था डोमिनिको गिरलैंडियो। डोमिनिको गिरलैंडियो, याद रहेगा ना बच्चों? चलो आगे देखते हैं। द रूलर ऑफ फ्लोरेंस, द रिच एंड पावरफुल लोरेंजो डी मेडिकी हैड अ स्कूल फॉर स्कल्प्टर्स इन द गार्डन ऑफ हिज हाउस। सो हुआ क्या कि जो फ्लोरेंस प्लेस था वहाँ का एक रिच और पावरफुल रूलर था जिसका नाम था लोरेंजो दी मेडिकी। क्या नाम था इसका? लोरेंजो दी मेडिकी। एंड ही हैड अ स्कूल फॉर स्कल्प्टर्स इन द गार्डन ऑफ हिज हाउस, एंड ही वॉज अ ग्रेट पार्टनर्स ऑफ द आर्ट्स एंड ऑफ आर्टिस्ट। यहाँ देखो एक नया वर्ड है, पार्टन ऑफ द आर्ट्स। पार्टन ऑफ द आर्ट्स मीन्स वन हु डज द फंडिंग फॉर द आर्ट्स, ठीक है, हु डज द फंडिंग और स्पॉन्सरिंग वर्क। स्पॉन्सरिंग या फंडिंग का मतलब होता है कि जो इस आर्ट को प्रैक्टिस करने के लिए पैसे दे, ठीक है। मीन्स कि अब आर्ट को कंडक्ट करने के लिए अगर कोई ड्राइंग करनी, कोई पेंटिंग करनी, कोई स्कल्पचर बनाना है तो जो भी उसमें एक्सपेंसेस आएंगे उसकी जो फंडिंग का वर्क था, वो फंडिंग का वर्क कौन करता था? ये लॉरेंजो डी मेडिकी करते थे, ठीक है। सो माइकलैंजेलो ज्वाइंड हिज स्कूल एंड ही सून आउटशोन द अदर पीपल्स। अब जब उसने वहाँ पे स्कूल ज्वाइन किया तो बिकॉज उसको हमेशा से पैशन था तो ही परफॉर्म्ड वेल, एंड अदर पीपल्स के मुकाबले ही परफॉर्म्ड फार बेटर, बहुत अच्छा परफॉर्म किया, ठीक है। लॉरेंजो द मेडिकी वॉज सो इम्प्रेस्ड बाय माइकलैंजेलो स्कल्पटिंग दैट ही इन्वाइटेड हिम टू लिव इन द मेडिकी पैलेस इन फ्लोरेंस। अब वो उससे इतना ज़्यादा इम्प्रेस हो गया था, क्योंकि इम्प्रेस होने के बाद उसने क्या किया कि माइकलैंजेलो को बुला लिया अपने पैलेस में, मेडिकी पैलेस में, कि आप आओ और यहीं पे मेरे साथ रहो। यहाँ पे हेयर ही पार्टिसिपेटेड इन डिस्कशन विद लीडिंग स्कॉलर्स एंड पोएट्स हु विजिटेड द हाउस। यानी कि अब यहाँ पे उसकी डिस्कशन होती थी, जितने भी स्कॉलर्स होते थे, पोएट्स होते थे, रिगार्डिंग द सेम, ठीक है। एंड वो फिर वो चीज़ों को लर्न करता रहता था। ही वॉज अ कीन लर्नर, ठीक है। देन इन 1492 लॉरेंजो डाइड। इन 1492 कौन डाइड करता है? लॉरेंजो डाइड करता है। ही वॉज द किंग ऑफ द पैलेस, ओके, ही वॉज द लाइक रूलर ऑफ द पैलेस। एंड सडनली माइकलैंजेलो वॉज बेरेफ्ट ऑफ अ पैट्रन। बेरेफ्ट मीन्स डिवाइड होना, यानी किसी चीज़ की कमी होना, ठीक है ना। बेरेफ्ट का मतलब होता है किसी चीज़ की कमी होना, ठीक है। तो राइट नाउ जब ऐसा हो गया कि लॉरेंजो जो उनके स्पॉन्सर थे वो डाइड कर गए, डेथ कर गए, तो अब उसके बाद उनको स्पॉन्सर्स की कमी होने लगी। बेरेफ्ट ऑफ पैट्रन्स मतलब स्पॉन्सर्स की कमी होने लगी, पैसों की कमी होने लगी। In 1496, Michelangelo left Florence and went to Rome. अब 1496 में क्या हुआ कि he left Florence and went to Rome. रोम चले गए। And it was not long before his genius won him the favor of various rich men who wanted him to work for them. अब क्या हुआ कि जब ये रोम गए तो बहुत सारे ऐसे जीनियस थे, रिच मैन थे, जो चाहते थे कि माइकलैंजेलो उनके साथ काम करे, ठीक है। इट वॉज इन रोम दैट ही ट्रूली स्टैब्लिश्ड हिज फेम। और क्योंकि भाई लोग चाहते थे तो उनके साथ काम कर करके ये अपने अपना बहुत ज़्यादा फेमस हो गए, अपना बहुत ज़्यादा शोहरत क्रिएट कर लिए। ही स्कल्प्टेड द ब्रेथ टेकिंगली ब्यूटिफुल पिएटा, अ लाइफ लाइक स्कल्पचर ऑफ अ ग्रीविंग मैरी होल्डिंग द डेड बॉडी ऑफ अ जीसस across his knees for सेंट पीटर्स चर्च। एक्चुअली हुआ क्या कि जब ये रोम गए तो इन्होंने एक ब्रेथ टेकिंग यानी बहुत ज़्यादा शानदार एक ब्यूटीफुल पिएटा इन्होंने स्कल्पचर किया, ठीक है। उसमें क्या पिक्चराइज हो रहा था कि ग्रीविंग मैरी, ठीक है, होल्डिंग द डेड बॉडी ऑफ जीसस अक्रॉस हर नीज। ये किसी चर्च था, सेंट पीटर्स चर्च, उस चर्च के लिए इन्होंने ये स्कल्पचर बनाया। मैं आपको देखो उसका पिक दिखाता हूँ बच्चों, ठीक है। लेट मी शो यू द पिक हेयर। देखो यहाँ पे सेंट मैरी हैं एंड यहाँ पे जीसस क्राइस्ट हैं, एंड ये चर्च है जिस चर्च में इन्होंने ये पेंटिंग, ये स्कल्पचर को ड्रॉ किया। इट्स नॉट पेंटिंग बट इट्स स्कल्पचर, ठीक है। पेंटिंग स्कल्पचर में डिफरेंस क्या है? पेंटिंग इज ड्रॉन ऑन पेपर और आपका किसी पे होता है, बट ये जो ये आपका ये वॉल्स में या सीलिंग पे की जाती है, ठीक है।
And what happened further? Soon after, he sculpted his most magnificent statue, the colossal figure of David. This statue was over 4 meters high. And इसके बाद इन्होंने क्या किया कि इन्होंने क्लोजल फिगर ऑफ डेविड का स्टैचू ड्रॉ किया, जो कि अराउंड 4 मीटर हाई था. अराउंड 4 मीटर हाई मीन्स इट्स अ ह्यूज स्टैचू एक्चुअली. ठीक है. सो माइकल एंजेलोस रेपुटेशन ग्रीव. अब इनके ये दो फेमस वर्क से, एक जो वर्क था पिएटा का, ठीक है, जो दूसरा वर्क था डेविड का, जो क्लोजल फिगर इन्होंने बनाया. इन दो वर्क से इनका जो रेपुटेशन है बहुत ज़्यादा ग्रीव कर गया. ड्यूरिंग दिस टाइम ही वॉज यंग, फुल ऑफ एनर्जी एंड एम्बिशियस. He worked at a frantic pace, यानी बहुत ज़्यादा स्पीडली या बहुत ही ज़्यादा पेसफुली इन्होंने काम किया. एंड सपोर्टेड हिज एंटायर फैमिली, हिज ब्रदर्स एंड फादर. सो क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मेहनती थे, बहुत अच्छे से काम किया, सो ही सपोर्टेड हिज फैमिली एंड ब्रदर्स. एंड देन व्हाट हैपेंड कि अच्छा हाँ, दे यूज्ड टू आस्क फॉर मनी फ्रॉम माइकल एंजेलो. कौन कौन? इनके ब्रदर्स, इनके फादर्स, क्योंकि माइकल एंजेलो वॉज ग्रूमिंग. So Michelangelo was getting appreciations and money. So that's why his father and his brothers started demanding for this wealth. What happened further? Michelangelo had high expectations of himself, so he was rarely satisfied with his work. क्योंकि माइकल को बहुत ज़्यादा अपने आप से एक्सपेक्टेशन थी कि वो बहुत अच्छा लाइफ में करें और वो और भी ज़्यादा हार्ड वर्क करना चाहते थे. ठीक है, इसलिए वो कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होते थे. जस्ट केप्ट ऑन वर्किंग इज हार्ड. ही वॉज सो एब्जॉर्ब्ड इन हिज वर्क दैट ही हैड पेड लिटिल हीड टू हिज अपीयरेंस एंड टुक स्कैंट इंटरेस्ट इन डोमेस्टिक कम्फर्ट्स. यानी घर पे जाके आराम करना इन्हें पसंद नहीं था, यानी काम वगैरह करना ज़्यादा पसंद था. ऑफन ही वॉज वर्किंग एट ओनली ए पीस ऑफ ब्रेड इन द कोर्स ऑफ एंटायर डे. कभी कभी ऐसा भी होता था ऑलमोस्ट कि पूरे पूरे दिन ये जो है सिर्फ काम करते रहते थे और सिर्फ एक रोटी दो रोटी खा के रह जाते थे. ठीक है. When he was working now from 1505 onwards, Michelangelo's fortunes were dependent on a succession of popes. अब देखो 1505 में क्या होता है, क्योंकि ये रोम में थे उस टाइम पे, तो अब इनका जो भी था वर्क और इनका जो भी इनको वर्क करने का काम मिलता था, वर्क करने का जो भी ऑफरिंग मिलता था स्कल्पचरिंग का या पेंटिंग का या ड्राइंग का, वो सब डिपेंडेंट था पोप्स पे. कि जो भी कोई पोप वहाँ पे आते थे वो डिसाइड करते थे कि ये काम किस तरीके से करेंगे, किस बिल्डिंग में करेंगे, किस पैलेस में करेंगे. तो ये बड़ा डिसकंटिन्यूस सा हो गया था कि कोई एक पोप आते हैं, कुछ और काम देते हैं, फिर दूसरा पोप आता है, फिर दूसरा काम देते हैं. ये चीज़ देखो इसमें कही जा रही है. माइकल एंजेलोज वर्क वॉज वेरी often disrupted by the death of one pope and the arrival of another. ठीक है. Each of them wanted him to work according to their whims, यानी उनके मन मुताबिक काम करना चाहते थे. In 1508, पोप जूलियस सेकेंड, पोप नाम याद रखना बच्चों, पोप जूलियस सेकेंड demanded that he paint on the ceiling of the, किसके सीलिंग पे आओ देखते हैं, on the ceiling of the Sistine Chapel in his palace. So Pope Julius II wanted कि ये सिस्टीन चैपल में आके पेंटिंग करें, जो कि इनका पैलेस है. कहाँ पे? वेटिकन में इनका पैलेस है. ठीक है. तो Michelangelo was reluctant to undertake such a gigantic task as he always considered himself to be a sculptor, not painter. तो ये बहुत एक्चुअली में बहुत बड़ा टास्क था. गैगेंटिक मतलब बहुत बड़ा टास्क. ठीक है. तो ये इतना बड़ा टास्क था कि ये करना नहीं चाहते थे और ये हमेशा से अपने आप को एक स्कल्प्टर समझते थे, ना कि पेंटर. मैं फिर से बता रहा हूँ, देखो जो मूर्ति वगैरह बनाते हैं, जो स्टैचूज़ बनाते हैं, ठीक है, वेरियस लॉर्ड्स की, भगवान जी लोग की, तो होता क्या है ना कि ये दीज पीपल आर कॉल्ड स्कल्प्टर्स. इनको हम लोग पेंटर्स नहीं कहते. पेंटर्स आर दोज हु डज पेंटिंग ऑन वॉल्स एंड अदर थिंग्स. एंड वो पेंटर्स होते हैं जो मान लो कि किसी कोई आर्ट वगैरह पे पेंट करते हैं, किसी पेपर पे पेंट करते हैं, किसी चार्ट पे पेंट करते हैं, किसी वॉल पे पेंट करते हैं. बट ये हमेशा से अपने आप को माइकलएंजेलो क्या समझते थे? स्कल्प्टर समझते थे. ठीक है. क्योंकि इन्होंने स्टोन का वर्क सीखा था कहाँ पे? जब ये 10 ईयर्स के थे और अपने नर्स के साथ वहाँ पे एक रह रहे थे अपने फार्म लैंड पे. ठीक है. सो आगे बढ़ते हैं बच्चों. सो हुआ क्या कि विथ सम बिटरनेस एंड अनविलिंगनेस
ही एग्रीड एंड बिगेन द वर्क। हालांकि बेमंस इन्होंने अपना काम वहाँ पे स्टार्ट किया। इन्होंने पेंटिंग स्टार्ट की विद फ्रेस्कोस की एंड सीलिंग ऑफ द चैपल की विच वॉज एफिशिएंट टू कवर 10,000 स्क्वायर फीट स्पेस। अब देखो 10,000 स्क्वायर फीट का स्पेस था जहाँ पे इनको पेंटिंग करनी थी। ये देखो पैलेस यही है, इतना बड़ा सा पैलेस है ये, ठीक है। इतने बड़े पैलेस को इन्हें पेंट करना था, और ये तो खाली फ्रंट का है, अंदर से बहुत ज़्यादा ये बड़ा था, ठीक है। और देखते हैं आगे क्या था। सो ही स्टार्टेड पेंटिंग विद फ्रेस्कोस। हाँ ये लाइन हो गई थी। देन नेक्स्ट है for 4.5 years he labored lying on his back on a scaffolding nearly 100 feet above the chapel floor. सो उन्होंने लगातार 4 years तक ही 4.5 years तक वर्क किया वहाँ पे पेंटिंग की। स्कैफोल्डिंग वो होता है जहाँ पे देखो ये लोग बैठ के खड़े होकर लेट करके बड़े बड़े फ्लोर्स पे काम करते हैं। ये बना रहता है वुड का। देखो यार मीनिंग दी हुई है स्कैफोल्डिंग की, रीड कर लेना, ठीक है। He painted the beginning of the world, the creation of the sun and the moon, and the creation of man and women and the last judgment. अब इन्होंने क्या किया वहाँ पे वर्ल्ड की बिगनिंग, बेसिकली वहाँ पे इन्होंने पेंटिंग करनी रहती है हर चीज़ की। जो बड़े बड़े ज़माने के राजा और ये सारे पैलेस होते थे वहाँ पे, जब कभी जाओगे म्यूज़ियम वगैरह में या ऐसे प्लेसेस पैलेसेस में कभी विजिट करोगे तो वहाँ पे हर एक चीज़ को वो पेंटिंग के थ्रू दर्शाना चाहते हैं। दे वांट टू शो एवरीथिंग विद द हेल्प ऑफ पेंटिंग्स, एज राइजिंग ऑफ सन, राइजिंग ऑफ मून, okay, sunset, and how the world started, the birds and the animals, and apart from this the last judgment day, like the when this whole world will be finished। ये सारी की सारी चीज़ें दर्शाए इन्होंने। अब एट द एज ऑफ 72 माइकलएंजेलो was made the chief architect। 72 की एज में इनको जो है क्या बनाया गया, चीफ आर्किटेक्ट बनाया गया, ठीक है। एंड सेंट पीटर्स बैलिस्टिका क्या लिखा, सॉरी, एंड चीफ आर्किटेक्ट इन चार्ज ऑफ बिल्डिंग ऑफ सेंट पीटर्स बेसिलिका इन रोम। सेंट पीटर्स बेसिलिका इन रोम, ये जो हमारा बिल्डिंग है जहाँ पे ये सारा काम चल रहा था, इन पे इनको जो है चीफ आर्किटेक्ट बनाया गया, ठीक है। ही कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म द डिज़ाइन ऑफ द चर्च एंड इट्स ह्यूज डोम टूवर्ड्स द एंड ऑफ हिज लाइफ। अच्छा बच्चों ये ध्यान देना, ये सेंट बेलिस्का का, ये इनके ये सिस्टिन चैपल का पैलेस नहीं है, ठीक है ना, सेंट बेलिस का है, ठीक। और ये 72 ईयर्स के थे तब इनको यहाँ का चीफ आर्किटेक्ट बनाया गया था। टूवर्ड्स द एंड ऑफ हिज लाइफ माइकलएंजेलो डिड नॉट हैव द फिजिकल स्ट्रेंथ ऑफ और स्टेमिना टू स्कल्प्ट ह्यूज स्टैचूज और पेंट मैग्निफिसेंट फ्रेस्कोस। एक्चुअली में जब ये एज्ड हो चुके थे, ओल्ड हो चुके थे, तो इनके पास इतनी स्टेमिना तो थी नहीं कि ये पेंटिंग कर पाते, ये सारी चीज़ें कर पाते थे। ये खाली वहाँ पे सुपरविजन का वर्क करते थे, ठीक है। ही कंटिन्यू टू सुपरवाइज द बिल्डिंग ऑफ सेंट पीटर्स एंड स्कल्प्टेड एंड रोट पोइट्री फॉर हिज ओन एन्जॉयमेंट। पोइट्री लिखा करते थे वहाँ पे अपना एन्जॉयमेंट के लिए। देन व्हाट हैपेंड कि माइकलएंजेलो डाइड इन रोम इन 1564 में इनका डेथ हो गया, ठीक है। देन his body was taken to his native Florence as he had desired। इनके नेटिव यानी जो यहाँ के रहने वाले जहाँ पे थे, यहाँ से ये पले बड़े थे। इटली की बात नहीं हो रही है, यहाँ की बात हो रही है जहाँ पे इन्होंने अपनी सारी की सारी पेंटिंग्स वगैरह और चीज़र और हैमर यूज़ करना सीखा था फ्लोरेंस में। ही वॉज गिवन स्टेट फ्लेयर किट फॉर अ किंग, ठीक है। देन 4 centuries later his sculptures and paintings still arouse awe and wonder in the hearts of people। अच्छा देखो 1564 की बात है when he died, ठीक है। और आज देखो 4 centuries मतलब 4 centuries का मतलब 400 ऐड कर दो, ठीक है, यानी 1964। तो 1964 ले लो या और 50-60 ईयर्स ऐड कर दो तो ये 2020 चल रहा है, ठीक है। तो आज भी जो इनकी पेंटिंग्स हैं वो बच्चों, जो भी इनकी पेंटिंग्स का नॉलेज रखता है, एनीवन हु अंडरस्टैंड द आर्ट, जिसको आर्ट की नॉलेज है, वो हमेशा इनकी पेंटिंग्स को अप्रिशिएट ही करता है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो आई होप कि यहाँ तक आपको प्रॉपरली समझ में आ गया होगा। नाउ द पॉइंट इज कि हियर आर सम क्वेश्चंस, आंसर दिस क्वेश्चंस, यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चंस फ्रॉम 1 to 6 प्रॉपरली, ठीक है। देन ये जो पॉइंट है, जो मेजर इवेंट्स का पॉइंट है कि मेजर इवेंट्स में कब कब क्या क्या हुआ था। सो इफ़ यू वांट टू यू कैन आंसर इन योर बुक ओनली, ठीक है। मतलब ये जो वर्क है, ये जो हमारा क्वेश्चन 1 है, इसको तो बच्चों आपको फेयर में करना पड़ेगा, फेयर कॉपी में करना पड़ेगा।
बट ये आपका जो सेकंड वाला जो बॉक्स वाला है, इसके लिए आई कैन गिव यू लिबर्टी कि आप इसको अपने बुक में ही आंसर करके लिख सकते हो, ठीक है। मीन्स दैट वर्क जो कि वर्क बुक में हो सकता है उसको बुक में ही करो। ये जो मैच द वर्ड्स है इसको भी बुक में अपना मैच कर लेना रीड करके। देन उसके बाद ये जो ग्रामर वाला पार्ट आता है ना स्टूडेंट्स, ये जो ग्रामर वाला पार्ट आता है वो मैं आप लोगों को प्रॉपर तरीके से समझाऊंगा अपनी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ये जो ग्रामर वाला पार्ट नेक्स्ट आगे चला आ रहा है, आई विल एक्सप्लेन इट प्रॉपरली इन द नेक्स्ट क्लास। सो दैट्स ऑल फॉर द डे बच्चों, थैंक्स अ लॉट।